Hello students, today we are going to solve the problems of double and triple integrals by changing the variables. Let's begin with this topic now. So what we are going to do in this topic is, let's say we are given a double integral for some function f of xy dx dy over the region R. हमें ये डबल इंटेग्रल दे रखा है, बट नाउ a transformation is applied there and the variables x and y are now changed to new set of variables, let's say u and v. अभी क्या हो रहा है, जो एक्स वाई हमारे पुराने वेरिएबल्स थे उनको चेंज कर दिया और चेंज किस में कर दिया, u और v में. तो जो हमारी प्रॉब्लम है ये भी चेंज हो जाएगी. ये प्रॉब्लम चेंज होकर क्या बन जाएगी हमारे पास, इट विल रिमेन डबल इंटेग्रल ऑल्दो. Now this function will be now changed in terms of u and v. जहाँ पर भी एक्स वाई होगा हम उनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे u v के टर्म्स में. The limits will be also changed now ना. Earlier this region R was demonstrating the limits of x and y. Now it will have the limits of u and v. और यहाँ पे जो फैक्टर है dx dy, this will be changed to modulus of j du and dv, where the term j is known as Jacobian and it's represented as curl of xy previous variables with respect to uv the new variables, and it is given as determinant of curl x by curl u, curl x by curl v, curl y by curl u, curl y by curl v. Similarly, for triple integral we have a similar set of rule that over the region, let's say a, now this will be triple integral. Now the x, y, z are changed to, let's say, u, v, w. Then you have modulus of j du dv dw over the region a prime, let's say, where j will be curl of x, y, z upon curl of u, v, w, which is determinant of now a 3 cross 3 matrix, curl x by curl u, curl x by curl v, curl x by curl w. Then the second row goes for y and the third row goes for z. Z by u, curl z by curl v, curl z by curl w. तो वो करना क्या होगा क्वेश्चंस में, जैसे आपको ये डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम दे रखी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखी है दैट एक्स वाई आर कन्वर्टेड टू यू वी. सो आप उसके लिए जकोबियन कैलकुलेट कर लीजिए जे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. और जो लिमिट्स है एक्स वाई की लिमिट्स आपको गिवन होंगी, द लिमिट्स फॉर एक्स वाई विल बी गिवन टू अस विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिलेशन ऑफ एक्स वाई एंड यू वी. वी विल कन्वर्ट दैट लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी. एक्स वाई की जो लिमिट्स दे रखी हैं वहाँ से हम यू वी की लिमिट्स कैलकुलेट कर लेंगे, डबल इंटीग्रल रीस्ट्रक्चर करेंगे अब यूवी के टर्म्स में और उसको सॉल्व कर देंगे हम. एंड सेम गोज़ फॉर ट्रिपल इंटीग्रल. अब कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जिनमें ट्रांसफॉर्मेशंस हमें दे रखी हैं, बट देयर आर सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस एज वेल दैट वी शुड अवेयर ऑफ, जो हमें पहले से पता होनी चाहिए. एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है पोलर फॉर्म which is for two variables. Remember that polar form is for two variables, that if you have variable x and y, then in polar form x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, where the full range of theta is from 0 to 2 pi. थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2 पाई तक. रेस्ट डिपेंड्स लाइक इन द प्रॉब्लम इफ दे आस्क फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इफ द range of x and y lies in first quadrant, then you can say theta lies for 0 to pi by 2. Rest depends on the problem, but the overall full range of theta is from 0 to 2 pi. And similarly for r we have this relation. See, the r represents here the distance, so it will be obviously greater than equals to 0. Okay, r will be always greater than equals to 0. And if you wish to calculate the limits of r, how you can do that, let's say this is equation number 1, this is equation number 2, then do squaring and adding equation 1 and 2, we get r square is equals to x square plus y square, which means r is equals to square root of x square plus y square. तो ये हमारे पास हो गई
आर की वैल्यू। तो ये पोलर फॉर्म एक तो हमें स्टैंडर्डाइज पता होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर 3 वेरिएबल्स वी हैव स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। पोलर फॉर्म है 2 वेरिएबल्स के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर फॉर 3 वेरिएबल्स इन विच the 3 variables x, y, z are converted into r, theta and phi. Remember the value of x is r cos theta sin phi, y is equals to r sin theta sin phi, z is equals to r cos phi. And again here if you do squaring and adding of these three equations na, you will get r is equals to x square, y square, z square. The range of theta, full range is, I'm not saying that every time theta will be 0 to 2 pi, but the full range is for theta is from 0 to 2 pi and for phi it is from 0 to pi. और अगर आप इनका जैकोबियन सॉल्व करें ना, like for polar form you will solve j ना, j will be curl x by curl r, then curl x by curl theta, curl y by curl r and curl y by curl theta. This is r. आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आएगा r, एंड फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स j इज इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन फाई. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू, आपको करके दिखा देती हूँ मैं सॉल्व. जैसे अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें, j विल बी कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल आर थीटा, है ना. सो इट विल बी कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा, curl y by curl r, curl y by curl theta. Then curl x by curl r, what is the value of x? r cos theta. Value of y is r sin theta, है ना. अब x का डेरिवेटिव r के साथ, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r, सो एट दैट टाइम थीटा इज कांस्टेंट ना, सो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ r 1, so simply cos theta. Similarly derivative of y with respect to r, derivative of r 1, sin theta is constant, so simply sin theta na. Curl x by curl theta, that is derivative of x with respect to theta treating r as a constant. तो r तो constant ऐसे ही आ जाएगा. cos का डेरिवेटिव नेगेटिव ऑफ sin थीटा. सिमिलरली ये कितना आ जाएगा हमारे पास r cos थीटा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट आपको पता है 2 क्रॉस 2 का, है ना. So it is r cos theta minus and minus plus r sin cos square theta sin square theta, taking r common, cos square theta plus sin square theta is 1, so j is equals to r. Similarly जब आप ये 3 डायमेंशन में करेंगे for spherical coordinates, j will be minus r square sin phi, नेगेटिव आएगा बट इवेंचुअली वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में इफ़ यू रिमेंबर जो हमने फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे क्या है, j का मॉडुलस है. अच्छा एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. इफ़ यू सी ना इन द सम बुक्स यू विल सी, इन द टेक्स्ट बुक्स यू विल सी जे इज they are writing plus r square sin phi, and once you solve for these values you can also have minus r square sin phi, and both the values are going to be correct. Actually that depends on how you are going to solve that, because some of them solve like this, curl x y z curl r थीटा एंड फाई. अगर तो आप ये वाली फॉर्म में लिखोगे दैट इज फर्स्ट आर देन थीटा एंड देन फाई, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा. बट ऑन द सेम टाइम इफ़ यू फॉलो द पैटर्न लाइक दिस आर फाई एंड थीटा, तो आपका जो आंसर है पॉजिटिव आ जाएगा. इसमें एक्चुअल में हो क्या, अगर आपको याद हो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है मैंने. सी दिस इज एक्स वाई जेड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ना. सो जे में क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर देन थीटा एंड देन फाई. अब कुछ बुक्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट दे आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर देन फाई एंड देन थीटा. तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है during determinant na. If you interchange two adjacent rows or two adjacent columns then your answer will be changed by a negative sign. अब हम क्या ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई, एंड दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ आर फाई एंड थीटा. तो इस वजह से आर आंसर इज हैविंग अ नेगेटिव साइन देयर, नथिंग एल्स. बट आपका ये जो आंसर है ये ऐसे ही आएगा. एंड हियर
I have solved the completely the determinant of this 3x3 matrix. I have used one concept here. आप directly भी solve कर सकते हो. That from the second column here, I am going to take r and sin phi common just to simplify my calculation. And from this third column, I am taking r common. मैंने ना यहाँ से r sin phi common लिया और यहाँ से r common लिया. उसके बाद ये थोड़ा सा you can say simplify हो गया मेरा determinant. Then by जो हमारा normal method होता है, मैंने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करा और इसको सॉल्व करा. आप इसे देख सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें डबल या ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय चेंजिंग दी वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy बाय चेंजिंग दी वेरिएबल्स इनटू पोलर फॉर्म. हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है. सोल्यूशन इन पोलर फॉर्म x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. यहाँ पे हम जैकोबियन भी लिख के रख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ j इज इक्वल्स टू आर. तो अभी लिमिट्स की बात करते हैं. हियर द लिमिट्स फॉर x एंड y आर लाइक 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, 0 लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी. एक्स और y की लिमिट्स हमें क्या दे रखी है? 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू इन्फिनिटी. मीन्स बोथ आर नॉन नेगेटिव. दोनों की वैल्यूज हमें नॉन नेगेटिव दे रखी है एक्स और वाई की. तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. देखो यही चीज़ है. एक्स वाई, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो हमें ये वाला रीज़न बोल रखा है ना कि एक्स इधर और वाई इधर. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है. नो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं रीजन की बात करूँ आर और थीटा की फॉर्म में, अब आर और थीटा की फॉर्म में क्या होगा? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक होता है? थीटा लाइज फ्रॉम 0 टू π/2. अब अगर आर की बात करें, आई टोल्ड यू आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू इन्फिनिटी. अब ये कैसे बना? सी नाउ द वैल्यू ऑफ आर वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट. अब देखो एक्स की रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी. y की भी रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी. आई विल ट्राई टू जनरेट दिस फॉर्म. तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो. 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी. 0 स्क्वायर इज सिंपली 0, वाई स्क्वायर इन्फिनिटी. ऐड कर दो दोनों को. सो इट विल बी 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्फिनिटी. बिकॉज 0 प्लस 0 विल बी 0 ना, एंड इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विल गिव अस इन्फिनिटी टेकिंग स्क्वायर रूट. दिस मीन्स 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इन्फिनिटी. इस तरह से बनाया हमने. ठीक है. सो वी आर डन विद द लिमिट्स. वी नो द वैल्यू ऑफ जैकोबियन जे. तुम्हारा इंटेग्रल क्या बन जाएगा? दिस इंटेग्रल विल बी नाउ इक्वल्स टू डबल इंटेग्रल ई रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ, अब एक्स वाई नहीं ना लिखेंगे, चेंज द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ आर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर. डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या आएगा? modulus of j, don't forget to write j, dr d theta. Limits of r 0 to infinity, limits of theta 0 to π/2. j की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे. सो दिस इज 0 to π/2, 0 to infinity e raised to power minus r square. The value of j is r dr d theta. And remember that there is a property of multiple integrals that if the limits are constant na, and your variables are in separated form, you can separate the integrals. जैसे यहाँ पे अगर आप देखो थीटा और आर इंडिपेंडेंटली इक्वेशंस है ना, तो मैं और लिमिट्स में भी कोई इनमें आपस में रिलेशन नहीं था, लिमिट्स कांस्टेंट ही थी, तो मैंने इंटेग्रल्स को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सॉल्व दैट इन द प्रीवियस वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट. आप पहले इसको सॉल्व करते रहो, ये साथ में डी थीटा और इंटेग्रल लिख के चलना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू. दिस विल जस्ट सेव आर टाइम, नथिंग एल्स ना. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा विल बी थीटा 0 टू π/2. नाउ व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन? इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर. हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? यस, वी कैन यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. पुट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स से टी
then 2r dr is equals to dt, r dr is equals to dt by 2. And don't forget to convert the limits from r to t, the limits of r from 0 to t, and t is simply r square, so the limits will still remain 0 to infinity na. So this is 0 to infinity e raised to power minus t, and r dr is dt by 2. एंड हियर आप इसको भी सॉल्व कर लो पैरेलल ही, साथ के साथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर माइनस टी इज ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन -1. ये एक 2 भी था ना, लेट्स राइट इट हियर 0 टू इन्फिनिटी. दिस विल बिकम, ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4. टेक दिस नेगेटिव आउटसाइड, दिस इज ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी एंड ई रेस्ट पर माइनस 0. e raised to power minus infinity is 0 and e raised to power 0 is 1. So the answer is pi by 4. तो ये हमारा आंसर आ गया. So this is how we solve double integral by converting the variables into polar form. अगर हम ये भी देखो ना, अगर हम इस इंटेग्रल की बात करें, ये वैसे हमारे लिए मुश्किल था इसको सॉल्व करना यूजुअल वे में. ये तभी हमने ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स मेथड है, ये उसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं कन्वर्ट. क्योंकि ये वाला जो इंटेग्रल है ना, अगर आप बिना कन्वर्जन के सॉल्व करने की कोशिश करो, ये फिर से वहीं पे स्टक हो जाएगी प्रॉब्लम कि अब इसको सॉल्व कैसे करें. लेट्स से हम एक्स के साथ कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे गामा फंक्शंस का कंसेप्ट आ जाता है, वो ट्राई कर सकते हैं हम. बट जबकि अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है. Now let's give a try to another example in 3 variables. ट्रिपल इंटेग्रल देखते हैं. ट्रिपल इंटेग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से. यू हैव टू सॉल्व ट्रिपल इंटेग्रल एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन पॉजिटिव ऑक्टेंट. जैसे हमारे पास 2D में क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, 3D में हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्टेंट्स होते हैं. ये क्या लिख दिया मैंने, ऑक्टेंट्स, OCTANT. पॉजिटिव ऑक्टेंट में हम इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है और हमें कुछ नहीं बोला गया ना. दिस इज़ द प्रॉब्लम इज़ हाउ स्टेटेड टू अस. अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो, यहाँ से हमें लिमिट्स निकालनी है. तो अगर अब आपको चेंज ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करोगे लिमिट्स निकालने के लिए, जैसे आपको बताया था, पहले 2 को 0 पुट करोगे, देन यू विल गेट द लिमिट्स ऑफ z. Z square is equals to a square, which means z is equals to plus minus a, but since they are asking for positive values, so the range of z is from 0 to a ना. वैसे तो अगर ये ना होता, if it was not mentioned there, the limits would have been minus a to a, but since they are restraining us for positive value, so it will be from 0 to a. फिर आप क्या करते हैं, in the next step you have been put x is equals to 0. From here you will get the limits of y 0 to a square minus z square square root. ऐसे ही लास्ट में आप x की लिमिट्स निकालते, द लिमिट्स ऑफ x विल बी लाइक a स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. एक तो आपको ये प्रॉब्लम इस तरह से बनेगी, आप सोच के देखो, आपको ये वाला फंक्शन सॉल्व करना है और इन लिमिट्स के साथ, हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड दिस इज़ गोइंग टू बी, है ना. यहाँ पे देखो लिमिट्स भी पहले खुद में कॉम्प्लिकेटेड, फिर फंक्शन भी, अब इसको भी सॉल्व करना हमारे लिए इतना ईजी नहीं रहेगा. And you can give it a try if you want to. It's not like that you can't solve it. We can, but it's going to be time consuming. Now rather we will solve the same problem by using the concept of change of variables. Spherical coordinates में change करेंगे and you will see how easily the question is going to be solved now. So this is our main problem now. Now in spherical coordinates the value of x is r cos theta sin phi, y is equals to r sin theta sin phi, z is equals to r cos phi. अगर आपको याद हो g की वैल्यू क्या थी इसमें हमारे पास, माइनस आर स्क्वायर साइन फाई, बट हमें तो क्वेश्चन में j का मॉडुलस लेना होता है, सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम पॉजिटिव. और रेंज क्या थी हमारे पास, अगर r की बात करें, द वैल्यू ऑफ r इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0.
theta lies between 0 to 2 pi, phi lies between 0 to pi. But in our problem they are asking us for the positive octant. In positive octant, both theta and phi will have range from 0 to pi by 2. Now let's convert our problem. हमारी प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ना. लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट r. सो हमें क्या दे रखा है, इट्स गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पुट दैट वैल्यू हेयर. सो यू विल गेट r इज इक्वल्स टू सिंपली ए आ गई. तो r की लिमिट्स क्या हो गई, 0 टू ए, है ना. देखो ग्रेटर देन 0 तो है ही, इवेंचुअली r डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो r इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव. और अपर लिमिट हमें यहाँ से मिल गई क्योंकि हमारा रीजन जो है वो इसी के अंदर अंदर है ना हमने बाउंडेड. सो r विल बी लेस देन a एंड ग्रेटर देन 0. तो हमारा ये ट्रिपल इंटेग्रल क्या बन जाएगा, दिस ट्रिपल इंटेग्रल विल बी ट्रिपल इंटेग्रल एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तीनों पुट कर दो यहाँ पे. r cos थीटा sin phi, value of y is r sin theta sin phi, z is r cos phi, x square y square z square. ये मत पुट कर देना बच्चे यहाँ पे, बी केयरफुल, डोंट पुट a square there, that's wrong. The value of x square y square z square is r square into r square. देन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जैकोबियन, j पुट करेंगे हम यहाँ पे इंटू जे डी आर डी थीटा डी फाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, लिमिट्स. सो दिस इज ट्रिपल इंटेग्रल. और j की वैल्यू कितनी है, एंड द वैल्यू ऑफ j इज मॉडुलस में आर स्क्वायर साइन फाई. तो अगर हम ये सभी को सिंप्लीफाई कर लें, सो आई विल गेट आर क्यूब एंड देन दिस आर स्क्वायर एंड देन आर स्क्वायर. टोटल पावर कितनी हो जाएगी, एक आर यहाँ पे है, 2 3 आर क्यूब एंड स्क्वायर आर 5 एंड एक ये स्क्वायर यहाँ पे आर रेज़ टू पावर 7. ध्यान से देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. ये हमारा फंक्शन था ना, दिस वाज द फंक्शन. यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे मैंने वैल्यूज को पुट करा है. ये एक्स वाई जेड है ना हमारा, एक्स वाई जेड की जगह पे हमने क्या करा है, एक्स वाई जेड की जगह पे हमने ये तीनों वैल्यूज रख दी, एक्स वाई और जेड की, इन दिस स्फेरिकल फॉर्म. फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की आर स्क्वायर, ये वो हो गया. और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे क्या आता है, जैकोबियन आता है, डी आर डी थीटा और डी फाई आता है. और जे की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर साइन फाई, वो भी पुट कर देनी हमने यहाँ पे. तो टोटल पावर आर की जब आप ये सब मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर और स्क्वायर पावर 4, यहाँ पे 3 बार आर यहाँ पे आ रहा है, तो पावर 7 हो जाएगी. तो कॉस थीटा अगर हम देखें, कॉस थीटा और कहीं तो नहीं है, बस एक हमारे पास कॉस थीटा है. साइन थीटा भी एक ही बार आ रहा है हमारे पास. साइन फाई 1 2 और एक वहाँ पर जे की वैल्यू 3, तो साइन फाई का तो क्यूब हो गया. कॉस फाई भी एक ही बार है हमारे पास. साथ में डी आर डी थीटा डी फाई, आर की लिमिट्स 0 टू ए, थीटा और फाई क्योंकि पॉजिटिव ऑक्टेंट था दोनों ही पाई बाय 2 में. फिर से लिमिट्स कांस्टेंट है, अलग अलग कर दें सारे इंटेग्रल्स को. सो 0 टू ए आर इज टू पावर 7 डी आर, 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, 0 टू पाई बाय 2 कॉस फाई एंड साइन क्यूब फाई डी फाई. तीनों ही इंटेग्रल्स हमने अलग अलग कर दिए यहाँ पे. अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. आर इज टू पावर 7 मीन्स आर इज टू पावर 8 बाई 8, 0 टू ए, ये बन गया. अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉलेस फॉर्मूला. अब वो भी अप्लाई कर सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आप इसको साइन 2 थीटा बनाइए, बट वॉलेस फॉर्मूला बेटर ऑप्शन रहेगी. यहाँ पे कॉस की पावर है 1, साइन की पावर भी कितनी है हमारे पास 1. तो वॉलेस फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले तो जो पावर है ये 1 ही आ जाएगा ऊपर, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2. नाउ सिंस द सम इज इवन हियर, सो वी विल अप्लाई पाई बाय 2 हियर.
सॉरी सम इवन नहीं है, दोनों पावर्स ओड है, पाई बाय 2 तो नहीं आएगा, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक। एंड पाई बाय 2 तो तब लगाते अगर दोनों जो पावर्स हैं वो दोनों ही इवन होती। और यहाँ पे पावर कितनी है 1 और 3, 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 3 में से हम पहले 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, पहले 4, 4 में से 2 माइनस करा 2। अभी ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, कितना आ जाएगा a/8/8 और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 × 2 8, सो दिस इज a/8/64। यहाँ पे जो मैंने वॉलिस फॉर्मूला यूज़ करा आपको पता लगा ना, वॉलिस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास कॉस की पावर है एंड साइन की पावर इस तरह से दे रखा है, द कंडीशन इज द लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 to π/2, तो आपको क्या करना है, ऊपर पहले पावर में से 1 माइनस कर देना है। और क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो हम 1 माइनस करके 0 नहीं करेंगे, वी विल सिंपली राइट 1, ओके। फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते जाना होता है हमने, m-1 m-3, फिर और कम करते जाओ। ऐसे ही साइन के लिए भी पहले पावर में से 1 माइनस करना है, फिर उसमें से 2 माइनस करते जाना है, और डिनोमिनेटर में पहले दोनों को ऐड करके लिख दो, फिर उसमें से 2 माइनस करते जाना आप। और साथ में यहाँ पे एक फैक्टर होता है, यहाँ पे या तो π/2 आएगा या फिर 1 आएगा। अगर तो दोनों पावर्स इवन है फिर तो π/2 लिखोगे, अगर दोनों में से एक भी पावर ऑड हो गई फिर आप 1 लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझ लो आप, जैसे 7 है और साइन के साथ पावर है 3, ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 7 में से 1 माइनस करो 6 आ गया, अब 2 माइनस करते जाओ 4 2, बस वहाँ पे रुक जाना है, 0 नहीं बनाना है। अब 3 है, 3 में से 1 माइनस करा 2, बस वहीं पे रुक जाओ। नीचे 7 और 3 कितना हो गया 10, पहले 10 एज इट इज़ लिखो, अब 2 माइनस करते जाओ। अब क्योंकि दोनों पावर जोड़ हैं तो π/2 नहीं आएगा। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी है, सो ये आंसर इज e⁴/64। और देखो अगर ये यही सेम प्रॉब्लम हम बिना कन्वर्जन के करें ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड, और वहीं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटेग्रल बाय कन्वर्टिंग द वेरिएबल्स। कई बार हमें ट्रांसफॉर्मेशंस दे भी रखी होती हैं, तो वहाँ पे हम अगर जिस तरह से भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें डायरेक्टली पोलर फॉर्म या स्फेरिकल फॉर्म की बात हो रही है तो हम जैसे हमने ये एग्जांपल्स अभी करी हैं इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस मोर एग्जांपल्स अबाउट चेंज ऑफ वेरिएबल्स, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए, देन डू लेट मी नो, वी कैन कवर सम मोर एग्जांपल्स इन सम नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।